For starting with the practice set 6.3, there is a formula again that we have to use in this practice set. So that is a cube minus b cube. Okay, अब तक हम लोगों ने जो formula use कर रहे थे that was a cube plus b cube, right? Now it's about the a cube minus b cube, means ऐसे वाले terms जो क्या है, जिसकी middle sign क्या होगी, minus होगी, तो उसको आप कैसे factorize करोगे, right? So same, exactly the same method you have to follow जो हम लोग ने यहाँ पर करे 6.2 में, that same method we have to follow. Just instead of taking the sign plus, सिर्फ साइन कन्वेंशन चेंज होंगे. ओके, यहाँ पे प्लस की जगह क्या है, इंस्टेड ऑफ प्लस इट इज हियर इट इज माइनस. तो फॉर्मूले में भी सिर्फ थोड़ा सा साइन में चेंजेस आएगा. फर्स्ट टर्म हम लोग का क्या होता था, a प्लस बी होता था, राइट? नाउ इट्स a माइनस बी. व्हाट इज दिस? नाउ इट्स a माइनस बी. ओके, एंड जो सेकेंड टर्म था that was a square minus ab plus b square, right? So here instead a square minus ab is a square plus ab plus b square. Okay, got it? So formula for a cube minus b cube is what? A minus b, a square plus ab plus b square. Okay, got it? So now this formula we have to use in the practice set 6.3. Okay, question number 4. फर्स्ट क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन में हम लोग ये यूज करेंगे, एंड देन सेकेंड क्वेश्चन में भी सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है, एंड इट इज यूज फॉर सिंप्लीफिकेशन. ओके, सो ना फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फर्स्ट फैक्टराइजेशन वाला जो पार्ट है वो सॉल्व करेंगे. ओके, 6.3 क्वेश्चन नंबर 1. सो नाउ लुक हियर, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? y क्यूब minus 27. So it's very easy. First question is y cube minus 27. Okay, now let's start doing the first one. Six point three, question number 1. Y cube minus 27. Now what I have told you, just you have to take out the values of a and b from this equation, right? A और b की values obtain करना है. So what will be the value of a? So पहले आप y cube को y raised to 3 लिख सकते हो, right? Minus 27 को आप 3 raised to 3 लिख सकते हो. Got it? अब 27 किसका क्यूब है? 3 का है ना, so आप 3 raised to 3 लिख सकते हो, 3 cube, right? Now we know the values of a and b. A is y, b is 3. So now you can imply the formula of a cube minus b cube. A cube minus b cube is equals to a plus b, sorry, a minus b into a square plus ab plus b square, right? यही formula है. So let us apply this formula on the equation. So now y raised to 3 minus 3 raised to 3 is equals to a minus b, right? So a की वैल्यू क्या है? y. b की वैल्यू क्या है? 3. So y minus 3 into a square means y square plus a into b means y into 3 plus b square means 3 square. So now further simplification will give you y minus 3 into y square plus 3y plus square of 3 is 9. So this is your final answer. Means क्या मिला आपको? अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू, ये a की वैल्यू है y और b की वैल्यू 3 है. सो जब आप अप्लाई करोगे फॉर्मूले में, जस्ट सिंपल है, आपको क्या करना है, फॉर्मूला एज इट इज लिखना है, जस्ट उसमें a और b की वैल्यूज चेंज हो जाएगी. खाली यहाँ पर a हर जगह, a की जगह क्या आ जाएगा? y. ठीक है, तो आपने वही लिख करे, और b के रिप्लेसमेंट में आप क्या लिखोगे? एवरी टाइम you will write 3. So y minus 3 y square plus y into 3 plus 3 square. Got it? उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होता है? जो सिंप्लीफिकेशन होता है वो करना होता है. मतलब जहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो वहाँ मल्टीप्लाई करना है आपको, जहाँ स्क्वायर कैलकुलेट करना है वहाँ स्क्वायर करोगे. ओके, सो नाउ लुक हियर, y minus 3 विल बी एज इट इज. ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकती. y स्क्वायर विल बी एज इट इज प्लस y into 3 को आप 3 टाइम्स y लिख दोगे और 3 का स्क्वायर लिख दोगे, दैट इज 9. ठीक है, so ये आपका क्या है? फाइनल आंसर है. ओके, here it is your final answer. Got it? So your first question is completed. Now let us start with the second question. Question number 2 is x cube minus 64y cube. So now value of a. So now can you write x cube as x whole raised to 3 minus 64y cube. तो 64 किसका क्यूब है? 4 का, and y आप लिख सकते हो. So now you know the value of a, you know the value of b, right? अब x को क्या लिखे आपने? x क्यूब को क्या लिखे? x whole raised to 3
64y³ की जगह आपने क्या लिखे 4y⁻³ मीन्स 4 किसका क्यूब है 64, 4 किसका क्यूब रूट है 64 का, ठीक है। नाउ a की वैल्यू x है, b की वैल्यू है 4y। सिंपली आपको क्या करना है a³ - b³ का फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो x³ - 64y³ विल बी इक्वल्स टू a माइनस b। a की वैल्यू x है माइनस b की वैल्यू 4y, ठीक, into a square means x square minus a into b means x into 4y plus b square means 4y whole square, right? So now we will simplify it further. X minus 4y will be as it is, x square minus x into 4y, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4 times xy plus 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, y का स्क्वायर क्या हो जाएगा y raised to 2. So here it is your final answer, okay? Means x³ - 64y³ is equals to x minus 4y into x square minus 4xy plus 16y square. So factors of the given questions are x minus 4y, x square minus 4xy plus 16y square. Got it? So ये आपका second question है. Say it once again. Next, third question. 27. Okay, now I will explain it once again. क्या गिवन है देखो, आपका जो टर्म है x³ - 64y³ है, राइट? क्या है x³ - 64y³। तो आपको x की वैल्यू लिखा, सबसे पहले आप क्या करोगे x को अंदर लिखोगे और उसके ऊपर आपने क्या लिखे x⁻³ लिखे, ठीक है। माइनस 64 को आप 4 लिख सकते हो, क्यों? बिकॉज 64 कैसे ऑप्टेन होता है, आप जब 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो ना, 4 इंटू 4, 4 4 द 16, 16 4 द 64, राइट? तो आप क्या कर सकते हो 4 इंटू वाई होल क्यूब लिख सकते हो इंस्टेड ऑफ 64y³, राइट? मीन्स 4y का क्यूब है। तो अपने फर्स्ट टाइम के रिप्लेसमेंट में जो टर्म्स है उसके रिप्लेसमेंट में क्या लिखे x, और यहाँ पे इसके रिप्लेसमेंट में 4y। अब a की वैल्यू क्या हो गई x हो गई, है ना, b की वैल्यू क्या हो गई 4y। कंपेयरिंग टू द फॉर्मूला a³ - b³, तो a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 4y है, ठीक है। अब फॉर्मूले में आपको क्या करना है, जस्ट सब्सटीट्यूट करना है। a की वैल्यू जहाँ जहाँ a आता है वहाँ वहाँ आप x लिखोगे, जहाँ जहाँ b आएगा वहाँ वहाँ 4y लिखोगे, ठीक है। सो a माइनस b, तो आपने क्या लिख दिया x माइनस 4y। a स्क्वायर, तो a स्क्वायर की जगह क्या लिखे आपने x स्क्वायर माइनस a इंटू बी, तो a की जगह x आया, b की जगह 4y आया, राइट? प्लस b स्क्वायर की जगह आपने क्या लिखे 4y स्क्वायर, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे x माइनस 4y एज इट इज लिखोगे, राइट? x का स्क्वायर लिखोगे, माइनस साइन एज इट इज रहेगी, x इंटू 4y। नाउ लुक हियर, यहाँ पे x के पास कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो 4 1 जा 4 आ गया और x और y एक साथ लिख दिया आपने, मल्टीप्लाई कर रहे हो ना आप, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप 4 इंटू एक्स वाई प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, राइट? और y का स्क्वायर y⁻², है ना। तो आपको आंसर क्या मिला फाइनल, x माइनस 4y, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 16y स्क्वायर। गॉट इट? नाउ अंडरस्टूड मरियम? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. 27 m³ माइनस 216 n³। ओके, नाउ लिसन, ये जो चैप्टर है इसमें आप लोगों को क्यूब वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो ना, तो आपको क्यूब्स रिमेंबर होने चाहिए प्रॉपरली। अगर आपको क्यूब्स पता है कि किस पर्टिकुलर नंबर का कौन सा क्यूब है, तो आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट? इसके लिए एक्टिविटीज दी जाती है, आपको स्क्वायर्स लर्न करना है, क्यूब्स लर्न करना है एंड ऑल। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आप जितना लर्न कर सकते हो, जितना पॉसिबल है उतने क्यूब्स लर्न करना है आपको, ठीक है। एज अब आप ऑब्जर्व कर लोगे, अगर आपको क्यूब्स लर्न है तो 27 क्या है 3 का क्यूब है, राइट? 3 का क्यूब है, और 216 6 का क्यूब है। ओके, मीन्स आपको क्या करना है जितना पॉसिबल है, जैसे 1 का क्यूब 1 रहता है, 2 का क्यूब क्या रहता है 8 रहता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 है, 5 का होता है 125। क्यूब मतलब क्या, आप उस पर्टिकुलर नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, है ना। 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 2 4, 4 2 8, क्या होता है 8 होता है। सो इस तरीके से आप जितने लर्न कर सकते हो उतने करोगे तो बेटर रहेगा, बिकॉज आपको अगेन एंड अगेन कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, राइट?
सो वैसे ही 6 का क्यूब क्या होता है, 6 इंटू सिक्स इंटू सिक्स, मतलब 6 6 36 6 216 होता है। तो ये 6 का क्यूब है, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करना है, एटलीस्ट 15 तक के क्यूब्स तो लर्न होने चाहिए आपको, 15 to 20। ओके, नाउ अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मेट में, राइट। तो 27 किसका क्यूब है, 3 का, है ना। और एम आप एज इट इज इसके साथ में लिखोगे होल क्यूब, माइनस 216 किसका क्यूब है, अभी मैंने आपको बताई 6 का, तो हियर यू विल राइट 6 एन क्यूब, गॉट इट। अब सबसे पहले स्टेप में आप क्या करते हो, इसके हेल्प से ए और बी की वैल्यू ऑब्टेन कर लोगे। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, फर्स्ट टर्म 3m, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 6n, है ना। अब सिंपल है, आपको जस्ट फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला क्या है आपका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। ए की वैल्यू क्या है 3m, माइनस बी की वैल्यू क्या है 6n, सो 3m माइनस 6n इंटू ए स्क्वायर, ए का वैल्यू क्या है 3m, सो 3m का स्क्वायर, माइनस ए इंटू बी, ए की वैल्यू 3m है, बी की वैल्यू 6n है, प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं प्लस आएगा ना, प्लस ए माइनस बी क्यूब है ना, तो फर्स्ट ब्रैकेट माइनस होता है, सेकंड टर्म सेकंड ब्रैकेट में सारे टर्म्स प्लस होते हैं। 3m स्क्वायर प्लस 3m इंटू 6n प्लस 6n स्क्वायर। ओके, नाउ अब फर्दर आप क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, जहाँ पे भी स्क्वायर कैलकुलेट हो सकता है स्क्वायर कैलकुलेट करोगे, और जहाँ मल्टीप्लाई हो सकता है वहाँ मल्टीप्लाई करोगे। ओके, सो नाउ सबसे पहले 3m माइनस 6n एज इट इज लिखोगे, फिर नेक्स्ट 3m स्क्वायर। अब देखो सेपरेटली आप स्क्वायर कैलकुलेट करोगे, 3 का स्क्वायर अलग, m का अलग, तो 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर 9, m का क्या हो जाएगा m रेस टू 2। आप होल रेस टू 2 लिख नहीं सकते, बिकॉज आपने ऑलरेडी 3 का स्क्वायर कैलकुलेट कर लियो, दैट इज 9, है ना। तो आपने सिर्फ नंबर्स को नंबर लिखना है, और जो पर्टिकुलर आपका वेरिएबल है उसके ऊपर सिर्फ स्क्वायर पुट करोगे, ठीक है। क्योंकि उस वेरिएबल का स्क्वायर आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, सिर्फ उसके पावर्स लिख सकते हो। तो m रेस टू 2, ठीक है, m का स्क्वायर क्या हो जाता है m रेस टू 2, ठीक, प्लस नाउ लुक हियर 3m और 6n को मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको वापस से एक बार इसके पहले भी बता चुकी हूँ कि जब आप ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या करोगे, आप नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, वेरिएबल्स को एक साथ में लिख दोगे, है ना। तो 3 6 18 एंड n इंटू m, राइट, गॉट इट, प्लस 6n स्क्वायर, सो अगेन 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और n का स्क्वायर क्या हो जाएगा n रेस टू 2, यू विल राइट इट एज इट इज। ओके, सो इट्स योर फाइनल आंसर। ये क्या आपका फाइनल आंसर, इसमें और फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता। इट मीन्स फैक्टर्स ऑफ 27m क्यूब माइनस 216n क्यूब का फैक्टर्स क्या है, 3m माइनस 6n इंटू 9m स्क्वायर प्लस 18mn प्लस 36n स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, फैक्टर्स है, फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट। Now here we have completed the third question. ये क्या है थर्ड क्वेश्चन,